everyone. A very good evening to all of you. And today I would like to welcome you to this eighth episode of Insider Insights, where we would be talking to Miss Lekhanshi Manocha, and we would be discussing how to crack Christ University entrance test for securing an admission into their MSc course for clinical psychology. So our guests have joined, and we'll be now beginning the session officially. Hello, Hi, Lekhanshi, good how are you? evening. I'm good. How are you? मैं एकदम बढ़िया हूँ. Thank you so much for asking. And today we would like to welcome you for the session on how to crack the Christ University entrance exams. And with your permission, I would like to officially Definitely. begin the session Yeah. for today. Thank you so much. So hello everyone, this is Amit Pawar from Power Within, and today we are with our guest of honor, Miss Lekhanshi, who recently cracked her Delhi University entrance test with an amazing rank 10 or an All India rank 10, and she also cracked her Christ University entrance test, and we'll also be talking more about her achievements in the field of psychology, as well as the today's topic is focusing on how to crack the Christ University entrance test for MSc in clinical psychology. So in today's episode, we would be addressing the admission process for Christ University and the key details relating to the admission form, to the next processes, the entrance test, the interview, and all the other relevant details. Yeah. Ji, Lekhanshi are you able to Yeah, join in there now? was I think some there was some network problem issues. with the. Okay. Ji. So if audio and video are clear, then I would like to again. Yeah. Okay. Sure. Ji. Thank you, everyone. So today we would be talking about how to crack Christ University entrance test with our guest, Miss Lekhanshi. And we would be talking about everything starting from the admission process, the journey that a student takes from admission form filling to the final step taken for the Christ University entrance test. So let's begin this session. And before that, I would like to request our guest to kindly introduce herself to the Okay. audience. Thank you so much for first of all having me here. It's a pleasure to be here, honestly. So, hi everyone. My name is Lekhanshi Manocha. I am currently pursuing my master's in psychology from University of Delhi. Previously, when I completed my graduation last year in 2022, I started preparing for entrance exams, and first I gave GATE psychology exam, then I gave the Christ University's entrance exam for MSc in clinical psychology, and finally I appeared for the Delhi University's entrance exam where I scored All India rank 10, and yeah, I'm all set to pursue my career in psychology now. Thank you so much, Lekhanshi. So, focusing on the Christ University entrance test. So, one of the key questions that we received from the Instagram story that we posted regarding the session is that why did you choose Delhi University over Christ University when you already cracked the Christ Yeah, University so that's a very entrance common test? question that a lot of people ask me, that why you left Christ University. So, see, I would say that it completely depends Ji. on your career goals. So, Christ University's program, MSc in clinical psychology, is very specific. They have very specific programs. They have MSc in counseling psychology, neuropsychology, psycho-oncology. So, for somebody who's very sure that they want to go into that field itself, it's a great option. But for somebody like me, I personally wanted to explore more. I was not sure that I wanted to go into clinical itself. I'm also open to going into research and other areas as well. So I thought that that's why doing a more generalized degree like MA in psychology would be better for my career goals. Bilkul. And also, Lekhanshi, while starting with your master's in psychology preparation, so when a student either in their bachelor's or after their bachelor's, when they wish to pursue master's in psychology, so what all institutes and colleges or the entrance exams did you think about giving? So for me, I initially thought that I would be interested in clinical psychology. So I was considering Christ only, but there are a lot of other universities
is there, जी Jamia, BHU. So these are certain Ambedkar University as well. They offer amazing masters courses. और इन सबके कोर्स स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि अगेन आपके बिल्कुल करियर गोल्स क्या है, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी का कोर्स अपने लिए सही लगता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक जर्नी को ट्रेस करने के लिए मैं चाहूंगा लेकांशी की थोड़ा सा आप ये चीज बताएं कि लगभग किस टाइम पे आपने एडमिशन हम्म. फॉर्म भरना शुरू करा था क्राइस्ट का, कब उसके बाद में आपका लगभग एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, या फिर कब डेट्स आई एग्जाम की, और उसके बाद में किस तरीके की डेट्स या मंथ्स में कवर हुआ पूरा का पूरा सो प्रोसेस। जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उस टाइम पे फॉर्म्स वर आउट बाय दिसंबर 2021. सो द फर्स्ट राउंड ऑफ जी एडमिशन हैपेंड इन मार्च. तो हमारे पास लगभग 2 महीने का टाइम था टू जी प्रिपेयर फॉर इट. सो दिसंबर में फॉर्म्स भरे, उसके बाद जनवरी बिल्कुल एंड फेब्रुअरी प्रिपरेशन किया पूरा एग्जाम्स के लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के, एंड देन मार्च में आई जी गेव द एग्जाम. देयर रिजल्ट्स कम आउट pretty quickly. So एग्जाम देने के around 1 week बाद या 10 days बाद तक you get to know whether you're selected or not. And then after that they give you another 10 days to pay जी your fee and decide if you want to go for the course. बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ में मैं लेकांशी ये चीज जानना चाह रहा था कि जैसे अभी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स में जिन लोगों ने फॉर्म्स भरे हैं, तो उनका मार्च में सिलेक्शन प्रोसेस के लिए डेट आ चुकी है। जो फर्स्ट फेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस की है वो मार्च के अंदर डेट्स, जैसा आपने बताया, कुछ लगभग उसी तरीके का ओवरलैपिंग डेट्स है। बट जो उनकी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो उनका अभी से लेके लगभग मई की शुरुआत तक खुले हुए हैं। सो वाज दैट द सेम केस विद Yes. योर So बैच क्राइस्ट और एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यूनिवर्सिटी ऑफ का टाइम। एडमिशन जो है वो फेजेस में होता है अलग अलग. सो आप अगर मार्च के साइकिल में अपियर करना जी चाहते हैं, आप मार्च में भी पेपर दे सकते हैं. उसके बाद उनके मल्टीपल साइकिल्स होते हैं, जैसे कि हमारे बैच के टाइम पे देयर वर 4 जी राउंड्स ऑफ एडमिशन. तो 4 बार हम लोगों ने एक ही जी बैच के लिए इनटेक के लिए अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किए थे. सो इफ यू फील दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड बिल्कुल टिल मार्च, तो आपके पास और ऑप्शन होता है आगे एग्जाम्स देने के लिए. एंड सिंस अभी क्राइस्ट बिल्कुल यूनिवर्सिटी ने मई बिल्कुल तक अपने फॉर्म्स ओपन किए हैं, तो ऑफ कोर्स मई तक तो आपके पास चांस है ही अपना बिल्कुल प्रिपरेशन करके एग्जाम देने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लैरिटी, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं वो ये परेशान हो रहे थे कि मार्च में डेट आ गई है, एकदम से प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ऑल्दो हम लोगों ने उनको ये प्रोसेस के बारे में बताया था कि मई तक फॉर्म खुले हुए हैं और वो लोग, बट हमारा ये एजम्पशन था कि ये फेजेस में इस चीज को कंडक्ट कर रहे हैं। और इस चीज के लिए थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस क्लैरिटी टू एवरीवन। ऑल्सो आई वांटेड टू नो कि जब आपका फॉर्म आपने फिल कर दिया है, तो फॉर्म फिल करते हुए क्या कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन, स्पेशल जानकारी हम लोगों के पास में होनी चाहिए विच वुड बी रेलेवेंट फॉर एस्पिरेंट्स Yeah. हु वुड बी फिलिंग So देयर फॉर्म्स। the form basically eligibility criteria क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का ये है कि नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स वो एग्जाम नहीं देते हैं. उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि आपके पास जी साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल योर सेमेस्टर्स. So that is a prerequisite that they have. Other बिल्कुल than that, फॉर्म फिल करते हुए they just ask for your basic details. और उसके अलावा आपकी क्लास 10th की मार्कशीट, जी 12th की मार्कशीट, जो आपका लास्ट सेमेस्टर हुआ है उसकी मार्कशीट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए. आईडी प्रूफ, मेरी आधार कार्ड, बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस, बेसिक डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी यूनिवर्सिटी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक और कॉमन क्वेश्चन जो हम लोगों के पास आया आपसे पूछने के लिए, वो ये था कि आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा टेस्ट सेंटर का। ऑल्दो ये फर्स्ट टाइम, सो जब मैं देख रहा था लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि सेंटर के अराउंड किसी के क्वेश्चंस हैं। सो देयर क्वेश्चंस फोकस्ड ऑन कि क्या किस तरीके की लिमिटेशंस, प्रोहिबिशंस, कि आप क्या चीजें ले जा सकते हो, क्या नहीं ले जा सकते, और सेंटर में जाने के बाद सेंटर का ओवरऑल एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस किस तरीके का था। तो अगर आप काइंडली, क्योंकि हम सभी जो है सेंटर्स का तो अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन आप थोड़ा सा अगर अपने सेंटर के बारे में जानकारी दे दें कि ओवरऑल किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस था उस चीज पे। हाँ जी. तो एक्चुअली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए हमें बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता. हम लोग अपने घर से एक जी लैपटॉप के थ्रू, जिसमें एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, हम लोग घर बैठ के वो एग्जाम देते हैं. तो उसमें जी दे हैव अ होल बिल्कुल सिस्टम
जिसका वो लिंक हमें प्रोवाइड करते हैं, उसमें वीडियो कैमरा ऑन रखना होता है हमें अपना, एंड द ओनली प्री रिक्विजिट इज दैट यू शुड हैव अ लैपटॉप विद अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। तो वो एनवायरनमेंट के लिमिटेशंस थोड़े से ये हो जाते हैं कि हम लोग घर बैठ के अगर एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो वी नीड वन एनवायरनमेंट जहाँ पे हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, जहाँ पे हम लोग एक स्टेबल तरीके से बैठ के अपने दिमाग को शांत करके वहां पे ला पाए। तो वो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है कि घर में कोई डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। सेकेंड ये है कि बहुत कभी कभी इस चीज की एंजाइटी रहती है कि अगर लाइट चली गई, इंटरनेट चला गया तो क्या करेंगे। तो in that case, I would suggest that it's better that you have a backup option. So like for example, I have Wi-Fi at home, but in case of a power cut, अगर ऐसा हो जाता है बीच में तो उसमें पैनिक करने की कोई बात नहीं है। आप अपना मोबाइल साथ में रख सकते हैं विद अ हॉटस्पॉट ऑन कि आप इमीडिएटली कनेक्ट कर लें। एंड उनकी बेस्ट बात यह है कि जो उनका सिस्टम क्रिएटेड है, अगर आपका एंट्रेंस बीच में लॉग आउट हो जाते हो आप, तो व्हेन यू लॉग इन टू दैट अगेन, वो वहीं से कंटिन्यू होता है, तो आपके आंसर्स लूज नहीं हुए हैं उसमें। तो दैट माइट बी लिटिल इंटिमिडेटिंग कि घर बैठ के कैसे एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, बट इट गोज ऑन प्रिटी स्मूथली इफ यू आर डूइंग इट ठीक से। आप कोई चीटिंग अनफेयर मीन्स नहीं यूज कर रहे हो, बिकॉज देन दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि वीडियो कैमरा हर टाइम ऑन रखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ में ज्यादातर जो ये एक नया मोड बेसिकली डेवलप हो रहा है एंट्रेंस एग्जाम्स का, जो ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अब एक्सेप्ट करने लगी है, और मुझे क्राइस्ट का अंदाजा नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके के सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो रहे हैं, सो दे आर बेस्ड ऑन वेरी हाई टेक एआई एल्गोरिदम्स। तो उस पे क्या रहता है कि आपका बेसिकली वाइडर कैमरा व्यू ऑन होता है। हम लोग काफी बार सोचते हैं कि शायद कैमरे में बस इतना ही दिख रहा है अगर, तो हम लोग यहाँ कुछ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं और उससे बहुत आसानी से एग्जाम्स के दौरान में अनफेयर मीन्स यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो कैमराज अब आते हैं वो, या इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स, वो बहुत ही अच्छी एआई एल्गोरिदम्स के साथ आते हैं, और वो ये सारी की सारी चीजें को बहुत अच्छे से टेबुलेट करता है और बता सकता है एटलीस्ट 95% ऑफ द चांस, मुझे लगता है 95 to 99% कि अनफेयर मीन्स यूज किया जा रहा है। और क्राइस्ट के उस सिस्टम में एक ये भी प्रोविजन है कि अगर आप और टैब्स ओपन करते हो, इट डिटेक्ट्स दैट ऑल्सो, and it tracks your eye movements also. So it's better to not try to use any unfair means, because that is like creating an unnecessary trouble for yourself. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच लेकांशी फॉर दिस। प्लस मैं साथ में आपसे जानना चाहूंगा कि नाउ कमिंग टू द एंट्रेंस एग्जाम पार्ट, कि एंट्रेंस एग्जाम में पहले तो मैं बेसिक डिटेल्स जानना चाहूंगा एंट्रेंस एग्जाम्स का, कि कितने क्वेश्चंस थे, किस तरीके का स्ट्रक्चर था, फॉर्मेट क्या था और क्या ड्यूरेशन थी, इस तरीके की चीजें अगर आप प्लीज। तो एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहता है, उसमें 120 क्वेश्चंस थे और अगेन 4 ऑप्शंस। तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट +1 and for every incorrect answer you get -0.25. So there is negative marking and that we have to take care of. Other than that, most of the questions what I realized was कि काफी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं क्राइस्ट में। मतलब डीयू और जामिया और बाकी यूनिवर्सिटीज से पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है एंट्रेंस एग्जाम्स का। कुछ क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल नॉलेज को भी टेस्ट करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्ट बेस्ड, कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग है तो आप वो आंसर कर पाओगे। तो दैट इज हाउ द पैटर्न मीन्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ में मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा था कि लगभग ड्यूरेशन क्या रहता है? ड्यूरेशन was I think 100 minutes or 120 minutes. I'll have to check upon that. Otherwise बाकी इनका जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है, everything is given on their website. So वहां से aspirants can check. बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ में मैं आपसे ये चीज और जानना चाह रहा था कि ओवरऑल एंट्रेंस एग्जाम का आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का था, क्योंकि आपने गेट के क्वेश्चंस भी लगभग उसी टाइम पे एक्सपीरियंस करे हैं, फिर मार्च के टाइम पे आपने क्राइस्ट के मतलब लगभग आपने क्वेश्चंस एक्सपीरियंस करे हैं, और उसके बाद में डीयू के क्वेश्चंस भी एक्सपीरियंस करे हैं।
तो अगर एक कंपैरेटिव डेटा आप प्रोवाइड कर सके इन तीन के बारे में रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस दैट हाँ यू जी। हैड विद द क्वेश्चंस। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन पैटर्न्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं पेपर्स के। कुछ कॉमनैलिटीज डेफिनेटली होती हैं कि किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आई थिंक वन टिप जो कि तीनों में कॉमन है, दैट इज कि यू शुड हैव अ वेरी थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट एवर यू आर रीडिंग। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ के बस कोई भी पेपर हो जाएगा, तो वो किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। बट अदर देन बिल्कुल दैट, जैसे गेट का बिल्कुल पैटर्न है, गेट का पैटर्न वाज दे हैड टू सेक्शंस। एक जनरल रीजनिंग सेक्शन होता है, एक साइकोलॉजी सेक्शन होता है। क्राइस्ट और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम में एक जनरल सेक्शन नहीं होता है, सीधा साइकोलॉजी के ही क्वेश्चंस आते हैं। बट अगेन क्राइस्ट और बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी अगर मैं एक कंपैरिजन दूं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में देयर इज अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस। कुछ होते हैं कि बिल्कुल आपका बिल्कुल थियोरेटिकल पार्ट नोटिस करते हैं, कुछ होते हैं कि आपकी फैक्चुअल नॉलेज देख रहे हैं, आपको कितना बिल्कुल रिटेंशन है ऑफ द मटेरियल दैट यू हैव स्टडीड। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एप्लीकेशन बिल्कुल ओरिएंटेड होते हैं। बट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के पेपर में मेजोरिटी ऑफ द पेपर बिल्कुल वाज एप्लीकेशन ओरिएंटेड, लाइक दे गिव यू सिचुएशनल क्वेश्चंस और फिर वो आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए पूछते हैं, जैसे कि अलग अलग डिसऑर्डर्स के नाम दे दिए, कोई दो तीन डिफाइनिंग फीचर्स की एक केस स्टडी बना के दे देंगे और फिर वो पूछेंगे बताओ ये कौन सा डिसऑर्डर है। तो दैट क्राइस्ट के बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चंस चेक योर एक्चुअल knowledge about the subject, your understanding about the subject. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ में मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि तीनों एंट्रेंस एग्जाम्स में आपका सबसे पसंदीदा एंट्रेंस एग्जाम कौन सो सा था कि? सबसे पसंदीदा मेरे लिए पर्सनली दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम था, क्योंकि आई बी वेरी ऑनेस्ट, माय फर्स्ट एम वाज जी ऑलवेज डीयू। सो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी बहुत पहले जी से और बहुत ज्यादा पेपर्स का एनालिसिस करती चली आ रही थी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं उस एनालिसिस के बेसिस बिल्कुल पे प्रिडिक्ट करती थी कि शायद से ये वाला क्वेश्चन आएगा। और फिर जब उसी तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं तो अच्छा तो लगता ही है कि जो प्रिपरेशन की हुई है वही क्वेश्चंस आए हैं। बिल्कुल सो इट्स लाइक डीयू का पैटर्न इन जनरल आई लाइक बिल्कुल मोर, क्योंकि उसमें मिक्स ऑफ क्वेश्चंस था, काफी इजी क्वेश्चंस भी बिल्कुल थे और काफी ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिसमें आपको बहुत सोच के बिल्कुल आंसर करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ में मैं ये चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ से हमारा एंट्रेंस एग्जाम का फेज हो जाता है पूरा। अब मान लीजिए आपका एंट्रेंस हम्म एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद का थोड़ा सा आप बताएंगे कि उसके बाद क्या स्ट्रक्चर रहता हम्म। है, लिस्ट कैसे आती है और लिस्ट के बाद किस तरीके का मतलब स्टेप बाय स्टेप सो प्रोसेस रहता है? क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एक्चुअली ऐसा नहीं है कि अगर आप एंट्रेंस क्लियर करते हैं उसके बाद आप इंटरव्यू देते हैं। व्हेन यू अप्लाई, सारे ही कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए भी अपीयर करना होता है। तो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज कि बिल्कुल आपका जब एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है, जब एंट्रेंस टेस्ट की जस्ट 2 दिन बाद से उनका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जिस दिन एंट्रेंस है उसके 2 दिन जी छोड़ के इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इंटरव्यू प्रोसेस चलता है अराउंड अराउंड 4 to 5 डेज तक। तो उन पर्टिकुलर 4 to 5 डेज में से जी किसी एक दिन आपको स्लॉट मिलता है अपने इंटरव्यू में अपीयर होने का। अब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इस इंटरव्यू बिल्कुल प्रोसेस के खत्म होने के कुछ 1 वीक के अंदर अंदर अपना रिजल्ट दे देते हैं। देयर रिजल्ट पैटर्न इज अ लिटिल जी डिफरेंट, वो कोई मेरिट लिस्ट नहीं निकालते हैं, दे जस्ट हैव एन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जहां पे लिखा आता है कि आप सिलेक्टेड हैं या आप नॉट सिलेक्टेड हैं। तो आपके एप्लीकेशन स्टेटस में इट्स ईदर सिलेक्टेड और नॉट बिल्कुल सिलेक्टेड, जो आपको पता चल जाता है। तो बेसिकली सारे ही कैंडिडेट्स को एंट्रेंस भी देना है और इंटरव्यू भी देना है, और दोनों के बेसिस पे वो बताते हैं कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक अच्छी चीज करी है क्राइस्ट ने अब कि एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू वो लोग बता देते हैं। सो काफी टाइम पहले जब मेरे बैचमेट्स ने हम्म अपने एग्जाम्स दिए थे क्राइस्ट के, सो लॉट ऑफ देम वर वेटिंग टू नो कि क्या मतलब हुआ या नहीं हुआ। सो वो लोग टेक्स्ट मैसेज से इन्फॉर्म करते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ का नहीं भेजते थे, वो बस हुआ का भेजते थे। तो ये एक अच्छी चीज करी है इन्होंने कि जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है एटलीस्ट उन्हें भी एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है उनका हुआ नहीं है, सो दैट कैंडिडेट्स कैन बेटर प्रिपेयर एंड दे कैन डिसाइड हाउ दे विश टू मूव अहेड विद दिस इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। साथ ही साथ में लेखांशी मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि इसके बाद में जो अगला स्टेप आता है आपका इंटरव्यू, तो अब मुझे अंदाजा तो नहीं है पूरी तरह से, लेकिन मैंने जितना अंदाजा लिया है कहते हैं कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है आपके सिलेक्शन में। से जानना
एक्सपीरियंस कैसा था पूरे इंटरव्यू प्रोसेस का, पहले वहां से शुरू कर लेते हैं। थोड़ी सी आवाज आ बीच रही में है? क्रैक हो रही थी। आप लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट जी कर जी जी सकते जी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाह रहा था कि हम लोग सबसे पहले शुरू करें कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू का, एंड देन हम लोग कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आ जाएं कि इस तरीके के क्वेश्चंस डील करे गए थे या इस तरह के ठीक है। सवाल पूछे जाते हैं। हाँ जी। जी तो आपने जैसा बोला, मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ उस चीज से कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है इन योर सिलेक्शन प्रोसेस। सो एंड इसीलिए क्राइस्ट बिल्कुल यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के बारे में आई थिंक सब लोग बहुत इंटिमिडेटेड रहते हैं उससे कि कैसा इंटरव्यू होगा, क्या होगा। और बिल्कुल पर्सनली मैं भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। सबसे ज्यादा एंशियस मैं इंटरव्यू पार्ट के लिए थी, बिल्कुल बिकॉज entrance is like you are already prepared for it बिल्कुल and you just have to go and check your knowledge. But interview में you don't know बिल्कुल कि क्या पूछ लें, कैसा पूछें. So my personal experience, बिल्कुल however, was really nice with the interview. I was very surprised that the interview went very well. But so what usually happens in the interview is दो professors होते हैं and they take your interview together. So they send you a link video call के लिए around 1 day or 2 days before your interview. And then on the day of your interview जो आपको time slot दिया जाता है उस time पे you have to log in and you have to join in. Both the professors take the बिल्कुल interview together. एक एक करके वो आपसे questions पूछते हैं and usually questions जो बिल्कुल होते हैं वो completely depends on interviewer. So कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बट बिल्कुल इन जनरल व्हाट दे यूजुअली आस्क इज, ये एक बहुत क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में प्रेवलेंट चीज है कि वो जानना चाहते हैं योर बेसिक एप्टीट्यूड, योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी. सो दे डोंट वांट टू चेक कि दे डोंट वांट टू सिलेक्ट बिल्कुल द मोस्ट ब्रिलियंट और मोस्ट नॉलेजेबल पीपल. दे जस्ट वांट टू नो कि आप कितने क्यूरियस हैं अबाउट द सब्जेक्ट, आप कितना जानते हैं दैट व्हाई यू आर इन द बिल्कुल फील्ड. So they usually ask questions like, why did you choose clinical psychology only? Or why are you choosing Christ only? Or they might ask you that, बिल्कुल what are your future goals? Where do you see yourself in the next 5 years, let's say? Or, how can you add value बिल्कुल to Christ University? So these are some questions that they ask you to understand कि, are you clear with why you are in the field or not? Um, then the second part of the बिल्कुल interview बिल्कुल is that of the micro presentation. So Christ University के इंटरव्यू के अंदर ही एक जी माइक्रो प्रेजेंटेशन होती है. माइक्रो प्रेजेंटेशन में दे गिव यू अ टॉपिक ऑन द स्पॉट और उस टॉपिक पे आपको अराउंड 90 to 120 सेकेंड्स तक बोलना होता है उसी टाइम पे सोच के. सो दैट इज आई थिंक द मोस्ट इंटिमिडेटिंग पार्ट की ऑन द स्पॉट पता नहीं क्या टॉपिक मिल जाए, हम बोल पाए या नहीं बोल पाए. बट आई थिंक टू नेविगेट थ्रू इट बिल्कुल सक्सेसफुली द ओनली की इज कि जो भी आपको टॉपिक मिला है, टेक 2 minutes, रिलैक्स, गैदर योर थॉट्स एंड देन स्टार्ट. बिकॉज दे आर वेरी ओपन बिल्कुल दैट वे, दे गिव यू सफिशिएंट टाइम. ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं कि इमीडिएटली शुरू हो जाओ. सो इट गोज ऑन प्रिटी स्मूथली. बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप ये माइक्रो प्रेजेंटेशन की बात कर रही हैं, आप थोड़ा अंदाजा दे सकते हैं कि किस तरीके के सवाल माइक्रो प्रेजेंटेशन हाँ के जी, अंदर तो पूछे माइक्रो जाते हैं? प्रेजेंटेशन में जैसे टॉपिक्स देते हैं कि आपको इस टॉपिक पे 2 minutes तक बोलना है. सो अब टॉपिक्स अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर कि वो क्या देना चाहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल दे माइट गिव यू समथिंग लाइक, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. It can be as basic as that. And when you say, let's say I say cognitive psychology is my favorite subject, so they'll give you a topic from cognitive psychology to speak about. But in my case, मेरे personal interview में they did not ask me something like that. They just gave a topic अपने आप से, and my micro presentation topic was overlap of mental health and immune system. So I had to speak on that topic based on whatever I बिल्कुल know from my UG or in general my opinions on that topic. बहुत टेक्निकल होने की उसमें नीड नहीं होती है. बिल्कुल इट्स जस्ट अबाउट वट एवर यू नो अराउंड दैट टॉपिक. बिल्कुल बिल्कुल। ये लगभग कुछ माइक्रो प्रेजेंटेशन एक्चुअली पहले इन लोगों का प्रोसेस में एक ऐसे फॉर्मेट हुआ करता था जब पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इनका ऑफलाइन रहता था, सेंटर्स पे एग्जाम हुआ करता था, एग्जाम के बाद में आपका इंटरव्यू होता था, और इंटरव्यू से थोड़ा सा पहले एक ऐसे फॉर्मेट में आपको वो 1 या 2 क्वेश्चन दिया करते थे, जो उस टाइम पे तो वो क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन साइकोलॉजी बेस्ड हुआ करता था और एक क्वेश्चन काफी जेनेरिक हुआ करता था नेचर में. तो मान लीजिए अगर वो
बिहेवियरिज्म की एप्लीकेशन पूछ ले किसी करंट वर्ल्ड सिनेरियो में, किसी कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में अगर वो चीज जानना चाहे, या फिर साइको एनालिसिस को अप्लाई करने को कह दे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, केस बेस्ड सिनेरियोज में। और मुझे लगता है उसी का एक फॉर्मेट, उसी को एक इन्होंने स्ट्रक्चर करके माइक्रो प्रेजेंटेशन वाले फॉर्मेट के अंदर डाला है, जो मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एक्चुअली हम लोगों के एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रोसेसेस में ज्यादातर जब हम लोगों ने अपने दिए थे, बी इट फॉर पीएचडी, बी इट फॉर, दे वर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स ओनली इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। वो थोड़ा साइकोलॉजी की नॉलेज टेस्ट करी आपकी, किस चीज पर आपको जानकारी है, नहीं जानकारी है। लेकिन अब जिस तरीके से अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर, खैर अब तो हल्का सा चेंज हो गया, लेकिन अगर तब का देखे या माइक्रो प्रेजेंटेशन देखे, आई फील लाइक आई एम मिसिंग आउट ऑन थिंग्स. So this seems to be something really good. So thank you so much for all these informations and insights that you are sharing, लेखांशी. और मुझे लगता है यही जो छोटी छोटी insights हमें मिल रही हैं, जो हम लोग अगर गूगल पे ये चीजें ढूंढे या कोशिश करें कि कहीं और जाके जानकारी मिले, तो एक ऊपर ऊपर से सारी चीजें तो पता चल जाती हैं, लेकिन हम लोगों को डिटेल में नहीं पता चलती, जो छोटी चीजें मतलब सवाल बन के दिमाग में खड़े हो जाते हैं. तो इस वाले इंटरव्यू से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के संबंध में मुझे जहां तक लगता है, आवर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी सेटिस्फाइड एंड दे वुड बी वेरी हैप्पी विद द आंसर्स दैट दे आर रिसीविंग फ्रॉम यू. सो रियली ग्लैड फॉर दैट. ऑल्सो मैं ये चीज जानना चाहूंगा लेखांशी आपसे कि जब आपका इंटरव्यू ओवर हो गया था, तो इंटरव्यू के बाद में किस तरीके का पूरा प्रोसेस रहा आपका until the final confirmation that you are selected and after that? So interview जिस दिन होता है, as I mentioned कि that is a 4 to 5 day process. जब सारे candidates का, जो भी applicants होते हैं, उनका interview होता है. So you have to wait till the process gets over, and after that within the next 1 week they give you the result on your portal. So जब मेरा interview हो गया था, उसके मेरा actually last day पे ही था interview, तो उसके exact 3 days बाद मेरे portal पे आ गया था that I am selected. And then after that, they give you 1 week to 10 days to pay the fee, and that's how your admission gets confirmed. बिल्कुल बिल्कुल. और साथ ही साथ में मैं आपसे ये चीज भी जानना चाहूंगा कि आपका जितना एक्सपीरियंस रहा क्राइस्ट के प्रोसेस के साथ में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के साथ में, सो उस सारे एक्सपीरियंसेस को कॉन्टेक्स्ट रखे, what would you be recommending to the students who are now preparing for masters in psychology and where they have all the options at this point of time? Christ भी है, NFSU भी है, DU भी है, BHU भी है, और जामिया, हजारों ऑप्शंस खुल जाते हैं. तो ऐसे टाइम पे how should they view Christ University entrance test at this point of time? So I just want to gain a little more clarity on that question. मतलब कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और इन सब यूनिवर्सिटीज में से कैसे सिलेक्ट किया जाए, या एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए? जी, बेसिकली कि इतने सारे ऑप्शंस हैं बच्चों के पास में यूनिवर्सिटीज के लिए, पर क्योंकि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम शुरुआत में हो रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि क्राइस्ट में जाना नहीं है या अभी सोच नहीं रहे हैं, तो क्या एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए. सो हाउ इम्पोर्टेंट दिस पोजीशन ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज कि बच्चों को ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, चाहे वो उसमें जाना चाहिए या ना जाना. All right. So first of all, I would say कि Christ University is a great option for anybody and everybody who wants to be in the field of psychology, because they have वैरायटी ऑफ कोर्सेज इन साइकोलॉजी, और जो कोर्सेज वो लोग ऑफर कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इंडिया में और कोई भी यूनिवर्सिटी उतने स्पेशलाइज प्रोग्राम्स बना रही है. इवन इफ यू गो थ्रू देयर कोर्स स्ट्रक्चर्स, इट्स वेरी, अगर क्लिनिकल का देखें तो इट्स वेरी क्लिनिकल ओरिएंटेड. मतलब आपको सिर्फ वो चीज बहुत अच्छे से वो पढ़ाएंगे जिसमें आप स्पेशलाइज होना चाहते हैं. सो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज अ ग्रेट ऑप्शन टू गो टू. बट स्टिल इफ समबडी हैज, लेट्स से, जैसे मेरा था कि मुझे DU फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी थी अपनी. So if somebody has that thing in mind कि उनको कोई और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है माइंड में, I would still suggest कि पेपर जरूर देना चाहिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, बिकॉज अगेन सारे ही एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव. सो यू कैन नेवर बी श्योर कि आपका सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा. सो ये वाली जो सारी ही यूनिवर्सिटीज हैं, दे ऑल आर वेरी गुड. एंड अगर आपका किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग गुड इन माइंड, गुड इन हैंड इफ यू गेट इनटू क्राइस्ट. सो आई वुड सजेस्ट कि वो तो देना ही चाहिए. और सेकंड रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि देना ही चाहिए क्राइस्ट का एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि ये जो पूरा एक्सपीरियंस है,
इस एंट्रेंस प्रोसेस का, आई डोंट थिंक कि ऐसा एक्सपीरियंस किसी भी और यूनिवर्सिटी में मिलेगा इन इंडिया, बिकॉज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का बिल्कुल एंट्रेंस बिल्कुल प्रोसीजर इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक, एंड ऐसा इंटरव्यू, ऐसा एक्सपीरियंस लेना अपने आप में एक बहुत अच्छी और एक बड़ी बात है बिल्कुल कि आप ऐसे किसी इंटरव्यू के लिए अपियर कर रहे हैं, उससे आप बिल्कुल पर्सनली बहुत कुछ सीख जाते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हुए आई बिल्कुल हैड टू रिफ्लेक्ट अ लॉट because my seniors suggested ki they will बिल्कुल ask you a lot of questions about why you are choosing this course, why you are in this field, when did you know that you wanted to take psychology. तो इंटरव्यू से पहले बैठ के पहले तो खुद से सोचना पड़ा कि एक्चुअली हम इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस चीज के लिए, हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम उस फील्ड में हैं क्यों, या हम आगे क्या करना चाहते हैं. बिल्कुल So it requires a lot of self-reflection, and बिल्कुल that बिल्कुल I think in itself is a great achievement if you do that. So it's good if you go through the process. बिल्कुल 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 और बहुत सुंदर आपने बात कही है इस सवाल का जवाब देते हुए। और मुझे लगता है कि बहुत आज के समय में जब ज्यादातर यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू प्रोसेस हटाती जा रही है और ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज जो इंटरव्यू पे इतना फोकस कर रही है और इतने अच्छे से पूरा का पूरा प्रोसेस स्मूथली कंडक्ट कर रही है, तो लिखांशी की बात बिल्कुल ठीक है कि एक बार तो ये चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए, और ताकि अपनी भी ग्राउंडिंग और बहुत सारी क्लैरिटी अपनी चीजों के बारे में पता चल जाए। तो एक लिखांशी मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी या क्या स्टाइल होना चाहिए एस्पिरेंट्स का और Right. क्राइस्ट So यूनिवर्सिटी? this is a very important thing to consider, I think. क्योंकि इंटरव्यू, वही जैसे मैंने बोला, सबसे इंटिमिडेटिंग, सबसे डॉन्टिंग पार्ट होता है इस पूरे प्रोसेस का. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी कैन नॉट बिल्कुल प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एज सच, बिकॉज वी डोंट नो कि हमसे क्या क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर करने से ज्यादा हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें फॉर दैट प्रोसेस, कि हम जानते हैं कि हम किस चीज के लिए बिल्कुल अपियर कर रहे हैं. सो वन थिंग आई वुड से दैट इज वेरी नेसेसरी व्हाइल अपियरिंग इन द इंटरव्यू इज टू बी वेरी जेन्युइन विद देम. सो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल जो हमारा बिल्कुल इंटरव्यू ले रहे हैं. द मोमेंट वी स्टार्ट मेकिंग समथिंग बिल्कुल अप, दे विल गेट टू नो. So they are just searching for genuine candidates. बिल्कुल Whatever you feel, whatever you think, it's important to show them that true side of yours. So that will be one thing. Second, it's बिल्कुल also important to be spontaneous, because kitna bhi hum keh lein, they are also looking for smart candidates. So even if you don't know बिल्कुल an answer, it's completely fine to not know something, but you have to be confident and smart enough to answer that कि बिल्कुल हमें ये चीज क्यों नहीं पता, to back that up and be honest. I don't know this answer, बिल्कुल maybe because I read it somewhere, but I'm not able to recall right now. You have to be very honest with them that way, as well as confident. Then again, they might ask you a lot of theory questions. So for that, it's important कि आपका जो बिल्कुल UG syllabus है, you are thorough with that, because they usually ask what all papers बिल्कुल have you studied. So when you are naming those papers, you should also know what all contents have you studied in it and basic overview of everything. बिल्कुल So these are a few things that I think are very important while you appear for the interview. बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं लिखांशी आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि considering your journey from bachelor's to here, and first of all securing an all India rank 10 in Delhi University entrance test, cracking GATE psychology entrance exam, cracking Christ University entrance exam. So how does it all make you feel? So काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इट रियली मेक्स मी फील प्राउड कि इतना जो भी सक्सेस मिला है, दैट्स बिकॉज ऑफ ऑल द हार्ड वर्क दैट आई हैव पुट इन. सो डेफिनेटली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई took up something. It all started with setting up a goal for myself and then working very persistently to achieve that goal. So अच्छा लगता है. And secondly, ये चीज बहुत अच्छी फील होती है कि जो भी गाइडेंस मिली सीनियर्स से, टीचर्स से,
सब कुछ बहुत काम आया है. Now that I look back, I realize that बिल्कुल whatever I gathered, I used to follow Power Within बहुत पहले से, and मैं आपका इनफैक्ट insider insights बहुत देखती थी. So that really helped a lot in जी formulating my own strategies. So अब it feels very good when my बिल्कुल juniors contact me for those strategies and I'm able to help them out. हम्म, So अच्छा experience है बिल्कुल काफी. बिल्कुल बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच। और हम यही कामना करते हैं हमारी तरफ से कि एक्सपीरियंस आपका हमेशा इतना ही बेहतर रहे और इससे भी ज्यादा बेहतर हो हमेशा। एंड विद दैट आई वुड आल्सो वांट टू नो कि अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन और स्ट्रेटजीज को इस एंडिंग फेज में लें तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे पहले किस तरीके के रिसोर्सेज आपने यूज करे फॉर प्रिपरेशन, और सिलेबस पहले ये जान लेते हैं हम लोग प्लीज, किस तरीके के रिसोर्सेज आपने यूज करे। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, एज आई सेड, आई हैड 2 months टू प्रिपेयर फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम. सो मेरी स्ट्रैटेजी पर्सनली ये रही थी कि जैसे क्राइस्ट के एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्स में मोस्टली फोकस रहता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, बायोसाइकोलॉजी, रिसर्च, ऐसे सब्जेक्ट्स पे फोकस रहता है उनका. तो उनका सिलेबस काफी लिमिट हो जाता है बिकॉज हमारा जो भी बिल्कुल यूजी का सिलेबस होता है वो काफी वास्ट रहता है, बट उसमें से अपने आप वो नैरो डाउन हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कोर्स दैट यू अप्लाइड टू. सो इफ यू अप्लाई फॉर लेट्स से काउंसलिंग, उसका कोर्स अलग बिल्कुल होगा, तो आपको स्पेसिफिकली वो पेपर्स पढ़ने हैं. अब बिल्कुल मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि आउट ऑफ दीज 5-6 पेपर्स आई आइडेंटिफाइड कि मेरे वीक एरियाज कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं. तो जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, आई नो बिल्कुल कि स्ट्रॉन्ग एरियाज तो अच्छे हैं, उनको और अच्छा करना ही है, बट आई स्टार्टेड विद माई वीक एरियाज बिल्कुल बिकॉज आई थॉट कि 2 months है, अच्छा टाइम है, कर लेंगे यूटिलाइज. आई स्टार्टेड विद माई वीक एरियाज बिल्कुल एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई सॉ कि कितने नंबर सब्जेक्ट, कितने नंबर ऑफ डेज है मेरे पास, एंड देन रफली डिवाइडिंग इट इनटू कि मेरे वीक एरियाज को ज्यादा दिन मिलने चाहिए और स्ट्रॉन्ग एरियाज को रिलेटिवली कम दिन मिलने चाहिए. So started with that. So for example, I really struggled बिल्कुल with research methods a lot. So I dedicated complete 12 days to research methods only out of the 2 months. And then बाकी अरे वाह, subjects को, because biopsychology, बिल्कुल cognitive psychology, they were already my strong areas because मुझे बहुत interest था उनमें पहले से. So I had already read a lot. I only had to revise बिल्कुल it. So ये strategy use करना I think is a very बिल्कुल helpful thing. I used it for almost all my exams, focusing on the weak areas, giving them more time, but बिल्कुल also allocating enough time to the strong areas to make them even stronger. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज के लिए आपने किस तरीके के रिसोर्सेज यूज करे, किस तरीके की बुक्स यूज करी, स्टडी मटेरियल यूज करा, टेस्ट सीरीज यूज करी, किस तरीके से आपने अपने बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को आपने एक ऑब्जेक्टिव हाँ अंडरस्टैंडिंग जी. प्रोवाइड तो करी। जनरल साइकोलॉजी के लिए मोस्टली मैंने सिसेरेली यूज की थी, उसके अलावा मैंने और कोई बुक रेफर नहीं की. इनफैक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आई रेफर टू ओनली वन रिसोर्स टू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड, बिकॉज जब हम मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ाई करते हैं तो बहुत बड़ा चांस होता है कि सब में बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, उतना रिटेन नहीं हो पाता है. So, sisterly for general psychology, बिल्कुल abnormal psychology because I was in semester 6 at that time, तो उस टाइम पे हमारा butcher से चल ही रहा था कॉलेज में. So that's how it helped. And बिल्कुल other than that, for abnormal बिल्कुल psychology, I would highly recommend going through the DSM-5 index and seeing कि जो new disorders हैं जो हमें नहीं बिल्कुल पता, we can go and see it on Google कि ये disorders क्या हैं, because it's MSc in clinical psychology, so we should be aware about at least all the disorders कि क्या है. So DSM-5 बिल्कुल 5 provides a very good resource for that. Other than that, for cognitive psychology, I did not use any other book. Cicerelli में ही जो basic concepts थे वो ही read किए थे. Same for biopsychology because बिल्कुल biopsychology के लिए एक अलग से chapter है, read that, and some concepts from Pinel. Then research methods के लिए जी I referred to one course on Coursera. It was a free course because I wanted to, as I said, कि research methods was my weak area. So I wanted to develop a greater understanding for it. बिल्कुल So I used that course to develop an understanding, and I then referred to the book Newman. So these were the basic resources that I used to develop बिल्कुल a theoretical understanding. और उसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अगेन बिना क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में जाना इज नॉट फ्रूटफुल एट ऑल. बिल्कुल तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल आई यूज्ड पावर विद इन की एमए साइकोलॉजी प्रिपरेशन बुक. दैट रियली हेल्प बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज. सो आई पर्टिकुलरली
picked those topics जो मेरे entrance exam में आने हैं, उनके previous year questions practice किए, उनके topic wise जो book में segregated questions हैं वो practice किए, and I also used one book which is AP Psychology. So उसमें से I practiced MCQ. जी So these were the primarily two books that I used for Christ. बाकी सब कुछ I used later on for Delhi University's entrance. बिल्कुल बिल्कुल एंड थैंक यू सो मच लेखांशी ने डिटेल में सारी चीजें एड्रेस करने के लिए। और एक बहुत ही अच्छी चीज जो लेखांशी ने ऐड करी है कि क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है हम लोगों के पास में, मान लीजिए 2 महीना का प्रिपरेशन का टाइम है या 2.5 या 1.5 महीने का प्रिपरेशन का टाइम है, और हम सोचिए डे 1 पे ही इतने सारी बुक्स का ढेर लगा लें और हम सोचें कि फिर एक एक करके उस पे से सारी चीजें निपटाते जाएंगे, तो वो उतना माइट भी वर्क ना कर पाए। अगर हम थोड़ा और स्मार्टली अपने एरियाज को स्ट्रेंथ एरियाज और वीक एरियाज में बांट लें और वीक एरियाज पर ज्यादा ध्यान दें और स्ट्रेंथ एरियाज को भी इंप्रूव करें, लेकिन उनको रिलेटिवली कम समय दिया जाए। बिल्कुल। And lastly, Lekhanshi, with extending our gratitude for your time and effort today for this session, I would like you to address the audience for everyone who's preparing for masters in psychology. आप उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी? So for all the aspirants, one thing that I would like to say is, one pro tip is that appearing for an entrance exam is itself a very, very anxiety provoking thing. So it's very important, extremely important कि preparation से ज़्यादा focus किया जाए अपने mental well-being पे, because at the end of the day, that is what helps you sail through any situation. So one is that. Second, कि किसी भी entrance को clear करने के लिए I think it requires a lot of hard work, a lot of dedication, consistency, and most importantly self-motivation. So even when you are practicing questions, there are going to be times जब you will be like कि मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है. But instead of seeing it that way, see it this way कि आज एक question गलत किया है, इसका correct answer पता चल गया है. What if ये आ गया मेरे question paper में? So I know one new concept now. So it's like every day you grow, every day you learn new things, and it's a journey. And even if you don't crack one entrance exam, there are a lot of options. This one exam does not define you. So again, taking care of your mental well-being. And I would also suggest one very, very important thing that I personally used to follow, जो मुझे लगा कि मुझे बहुत help किया है in this journey. That is कि it's very easy to get immersed into preparations. कि हमें ये crack करना है, हमें ये entrance crack करना है, हम अब पूरा दिन पढ़ाई करेंगे, अब तो रोज 8 घंटे पढ़ना ही है. It's good if you set such targets for yourself, and it's even better अगर आप ये follow कर सकते हैं targets. But it's also very important to take enough breaks. Every evening, go out, do some activity, go for walks, breathe, dance, listen to music, meet new people, just refresh yourself. So that is even more important. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से सारी बात को समेटा है, एंड यू हैव ब्यूटीफुल आर्टिकुलेशन स्किल्स। सो काफी अच्छा लगा, मेरे को भी सुन के बहुत सारी चीजें नई पता चली, नई जानकारी मिली, and I'm really glad that we had this interaction, and I am very hopeful that all the students who joined us in this session for today's episode 8, which focused on how to crack Christ University entrance exams, I'm very sure they are taking many things home because of this session. So I hope all of this would help them in their preparation and would work as a guide to help them kind of navigate through this masters in psychology journey, where they'll have a lot of options, they'll have a lot of challenging time, and how in these challenging times they'll be able to find the right opportunity, find the right way, and then focus on themselves and also on the exams and the preparation that they need to do. And Lekhanshi very well focused on that. So thank you so much for that. And I would like to lastly ask you that in all your journey from your bachelor's till here, how much did your bachelor's classroom experience help you to kind of navigate through the interview, entrance exams, and through all the processes? The reason why I'm asking this is that many a times most of the students believe that bachelors as such don't play any role in the journey that we take for masters in psychology entrance exams.
Rather, they believe that it's important that we stay at home and focus more on the questions, prepare for the exams. So, what role do you think your bachelor's prepared That's in this actually journey? a very, very important thing that should be addressed. So I personally do not agree with this thing at all कि bachelor's का कोई role नहीं है. So ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ बिल्कुल क्योंकि I am from the batch जो half offline हुआ and half COVID की वजह से online हुआ है. So we started with offline. One semester was offline, then we went online, and the last semester was again offline. So I have a very good comparison बिल्कुल of it कि classroom experience कितना बड़ा role play करता है. आई वुड से कि मुझे तो ये इस तरह से हेल्प बिल्कुल किया कि जितना एक्चुअली ये क्लासरूम एनवायरनमेंट में विद इंटरेक्शंस बीट विद योर टीचर्स बीट विद योर पियर्स इट बिल्कुल रियली गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ न्यू व्यू पॉइंट्स एंड जैसा कि मैंने बोला कि एंट्रेंस एग्जाम्स की ये जो जर्नी होती है दिस इज नॉट ओनली अबाउट एंट्रेंस एग्जाम्स इट्स ऑल्सो अबाउट योर पर्सनल ग्रोथ इट्स ऑल्सो अबाउट बिल्कुल योर प्रोफेशनल ग्रोथ तो उसके लिए बहुत बेटर प्रिपेयर करता है बिल्कुल आपको आपका क्लासरूम एक्सपीरियंस इवन ये जो माइक्रो प्रेजेंटेशंस भी हैं बिल्कुल how I gained confidence for it because in my final semester which was offline we had multiple presentations in the classroom so वहां पर भी यही सेम बिल्कुल चीज होती है यू प्रेजेंट समथिंग योर टीचर आस्क्स यू क्वेश्चंस योर peers ask you questions you have to be very spontaneous in that so that is how these things really prepare you they give you confidence they help in your personal बिल्कुल development and that's how you excel later on so it's absolutely important बिल्कुल 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 Thank you so much, Lekanshi, and I highly enjoyed this conversation. It's after a long time that I had such a lengthy interview. I, tried to sum up my interview, possibly in 30 minutes, although it gets extended. But this was a really interactive interview, and officially, I would like to close this session today. And I would also like to extend my gratitude to Lekanshi and to everyone who joined today. And we would be meeting next time tomorrow, and we'll be talking about NEPSED entrance exam for pursuing advanced diploma in child guidance and counseling. So the preparation strategies, we'll be talking about the admission process, the experience that people who are currently in the program they are having regarding the experience, and what kind of job opportunities are there right after the programs. So tomorrow at the same time, we'll be meeting again with a new episode and with a new guest. So thank you so much, Lekanshi, for today, for giving your time Thank and you. efforts Thank you for this so much. It session. was actually really nice being here. And I really hope I was able to help people out. So, yeah, thank you. You were, you were, you were. Thank you.